Miss Ruchi. She's a disability advocate and content creator who uses her life lived experience with LGMD to highlight real world challenges around accessibility, inclusion, and everyday life for persons with disabilities in India. I'm an open book because I really want to tell people कि चाहे कितनी मुश्किलें हों, कितनी लिमिटेशंस हों लाइफ में, अगर आप दिल से कुछ करना चाहो तो आप हमेशा कर सकते हो। So, hello everyone, I am Pratik, the author of Where Hope Begins and the founder of Stay Lit Journey. So, अब तक सबको पता ही चल गया होगा, I am Pratik. This is the last session of the Disability Dignity Design Seminar. And uh, I started Stay Lit Journey when I was just 13 years old. And today we are hosting this seminar. I'm so grateful. So, I want to thanks to the audience for joining today. And a special thank you to our guest, Ruchi ma'am and Pankaj. Thank you so much for being here and sharing your perspective. And I will not take too much time of yours and we'll start. I would like to handle it over to Ragini, the host of this seminar. Thank you so much. Hello everyone, I'm Ragini Pandey, second year bachelor student and a student volunteer at Stellar's Journey. I would like to welcome you all here, Pratik and my teammates and our speakers for today, Ruchi ma'am and Pankaj. Very warm welcome to both of you. So we will start. It's my pleasure to introduce our speaker for today, Miss Ruchi. She's a disability advocate and content creator who uses her life lived experience with LGMD to highlight real world challenges around accessibility, inclusion, and everyday life for persons with disabilities in India. Through her work, she addresses important topics such as workplace inclusion, accessible travel, healthcare navigation, and emotional well being, while building a growing community that values empathy and informed action. We are truly honored to have her with us today as she shares her insights with us and experience toward building a more inclusive future. Please join me in welcoming Ma'am, Ruchi Ma'am. The stage is all yours. So you can present your PPT and uh, just share your experiences. We are really excited to hear from you. थैंक्स डियर, थैंक्स रागिनी। एंड इवन बिफोर आई स्टार्ट मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं इस फील्ड में बहुत नई नहीं हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने लास्ट दिसंबर 2024 में यूट्यूब में बनाना शुरू किया था कंटेंट, और इंस्टाग्राम पे मैं बस इस अप्रैल 2025 में एंटर करी हूँ। और बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी फ्रॉम वट आई लर्न, इसलिए आई थिंक पीपल आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद मी। प्रतीक हैपन टू कनेक्ट विद मी बिकॉज मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैं एक मूवी गई थी, और उसमें मैंने दिखाना चाहा था कि कैसे वो जो मूवी थिएटर है वो एक्सेसिबल है या नहीं है। मैं बस ढूंढ रही थी किसको मुझे टैग करना है, किसको मुझे टैग करना है। मुझे प्रतीक मिला जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है पुणे में। आई एम बेस्ड आउट ऑफ पुणे, तो इसलिए मैंने प्रतीक को टैग किया और वहां से हमारी कनेक्शन शुरू हुआ, वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी फर्स्ट। मेरा नाम रुचि प्रताप है। आई एम अ मदर ऑफ अ 19-year-old सन एंड आई एम लिविंग विद माई मदर ऑल्सो। माई मदर इज 69 years old। मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है विच मेक्स माई मसल्स वीकर विद टाइम। इसको डायग्नोस हुए काफी टाइम हो चुका है। जब ये डायग्नोस हुआ था तब मैं दिल्ली में थी उस टाइम पे, और मेरे को बोला गया था, डॉक्टर ने बोला कि ये डिसऑर्डर है। उस टाइम पे मुझे नहीं बताया गया था कि ये डिसऑर्डर है और ये एक डिसेबिलिटी भी है जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है। मैं उस टाइम पे जॉब कर रही थी, एक बहुत ही खराब मैरिज में थी जिसमें हम लोग की ट्यूनिंग नहीं थी। मेरा हस्बैंड भी मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट था, तो बहुत सारी चैलेंजेस थे। जब पर डायग्नोसिस हुआ उसके बाद करीबन 9 महीने बाद मेरी ऐसी हालत हो गई कि या तो मैं अपना मेंटल पीस रख सकती थी या फिर मैं उस शादी को प्रिजर्व कर सकती थी। तो आई थॉट आई विल गो विद द मेंटल पीस एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड टू मूव आउट फ्रॉम माय हाउस बिकॉज इट वाज अ रेंटेड प्लेस ऑफ कोर्स एंड आई वाज पेइंग फॉर एवरीथिंग। सो फाइनली आई गॉट आउट ऑफ माई टॉक्सिक मैरिज, और उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑफ एक्सेप्टेंस। बिकॉज सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांजिशनिंग का, फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन टू अ डिसेबल्ड पर्सन। तो वो एक्सेप्टेंस में मुझे ऑलमोस्ट आई कैन इजीली से 10 साल लग गए मेरे को अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए।
वो जर्नी बहुत लंबी थी, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट जर्नी टुडे, बिकॉज आज ये टॉपिक जो है, डिसेबिलिटी, डिजाइन और डिग्निटी, ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब मैं इस डिसेबिलिटी वाले वर्ड में एंटर करी, तब मुझे पता चला कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम जैसे लोगों को कितने बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। ना ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स, सोसाइटी के एटीट्यूड के बैरियर्स हैं, किस तरीके से लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग के बारे में लोग सोचते हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं। और उसके अलावा हमारे खुद के दिमाग के बैरियर्स हैं, क्योंकि हम जब अपने रिलेटिव से इंटरेक्ट करते हैं, मैं अपने बेटे से, अपनी मदर से इंटरेक्ट करती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि हम लोग सब बहुत हैवी इमोशंस के साथ जी रहे हैं फैमिली के अंदर। गिल्ट है, फीलिंग ऑफ यू नो बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी है, तो बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने यूट्यूब के थ्रू उन फीलिंग्स के बारे में बात करूं जो जनरली लोग बात नहीं करते हैं। सो गेटिंग ऑन विद द टॉपिक, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके, सो पहली बात तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पे अपने हैंडल्स दिए हुए हैं इंस्टाग्राम के और यूट्यूब पे, अगर आप चाहो तो मुझे आप फॉलो कर सकते हो। मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी वहां पे है पब्लिश्ड। आई एम एन ओपन बुक, बिकॉज आई रियली वांट टू टेल पीपल कि चाहे कितनी मुश्किलें हों, कितनी लिमिटेशंस हो लाइफ में, अगर आप दिल से कुछ करना चाहो तो आप हमेशा कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन। तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम क्रिएट किया है। सो बेसिकली जैसे एक आइसबर्ग होता है, जिसका बहुत छोटा सा पार्ट हमको दिखाई पड़ता है, राइट, 1/4 पार्ट दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से हमें बहुत कम विजिबल डिसेबिलिटीज दिखाई पड़ती हैं, और इनविजिबल डिसेबिलिटीज बहुत बहुत सारी होती हैं, जिसके बारे में ना हमको कभी पता चलता है, ना हमें किसी इंसान से बात करके वो इनविजिबल डिसेबिलिटीज दिखाई पड़ती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी डिसेबिलिटी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें मसल्स के टाइम के साथ वीक होती हैं। तो उठना, बैठना, सीढ़ी चढ़ना और टॉयलेट सीट से उठना और बहुत सारे छोटे-छोटे काम, बेंड होना, झुक के कुछ उठाना या फिर हाथों को सर के लेवल से ऊपर उठाना, हाथों से कोई भारी चीज़ उठाना, बैग पकड़ना, मतलब बहुत सारी छोटी-छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती हैं। बट ये टाइम के साथ वर्स होता जाता है, और दिस इज़ एन इनक्योरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर। सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑल्दो यहाँ पे फिजिबल डिसेबिलिटीज के अंडर मेंशन किया गया है, बट ये स्टार्ट होता है इनविजिबल, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो अपनी पहले तो शेयर नहीं करना चाहते हैं, और शुरू शुरू में सिर्फ चलने में दिक्कत होती है, जिसको लोग ये भी सोच सकते हैं कि मे बी इसके जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है या इसके वेट की वजह से कोई प्रॉब्लम है, जो कि मुझे लगता था। बट ऑब्वियसली ये धीरे-धीरे टाइम के साथ जैसे वर्स होता चला जाता है, वैसे ही इंसान एक व्हीलचेयर यूज़र भी बन सकता है। जैसे कि मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं व्हीलचेयर यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं गिर जाती हूँ, तो मैं उठ नहीं पाती हूँ। और लोगों का सहारा लेने से बेटर है, या फिर अपने आप को चोट लगाने से बेटर है कि मैं व्हीलचेयर यूज़ करती हूँ। उससे मुझे सेफ्टी वाली फीलिंग आती है और मैं ज़्यादा देर तक कहीं बाहर रह सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पॉज़ लेना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इनमें से कौन-सी इनविजिबल डिसेबिलिटी है, जिसको आपने अपने आस-पास एक्चुअली में एक्सपीरियंस किया है? एनीबॉडी कैन कम ऑफ म्यूट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। Learning disability dyslexia. आपकी डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिया है, पंकज? तो ऑन टाटा इंस्टीट्यूट में मेरा जो दोस्त था वो लर्निंग डिसेबिलिटी में था, तो हुँ, पता है। ओके। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे पंकज, जब आपने पहली बार अपने दोस्त को देखा, तो आपको कैसा लगा था? मतलब बिना उससे बात किए कैसा लगा था? और मैम मतलब डिसेबिलिटी का नहीं पता है क्योंकि मैं खुद जी रहा हूँ, लेकिन जब मैं मतलब उसके जो कॉलेज के फ्रेंड थे तो ये तो बहुत अच्छा है, इसको मतलब इसको दिखता है, बॉडी बहुत अच्छी है, इसको दिक्कत क्या है, इसको सब अच्छा है, नाटक कर रहा है, तो ये था मैम सबका रिएक्शन। मुझे पता था लेकिन वो सबका रिएक्शन ये था। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे ही काफ़ी सारे असम्पशन्स लोग, सोसाइटी जो है अज़्यूम कर लेती है कि जिनके वो इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनको दिखती नहीं है जिनकी डिसेबिलिटीज़, तो लोग अज़्यूम कर लेते हैं इसको क्या परेशानी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें दिव्यांगजन का जो कोच होता है हमारी ट्रेन्स में, उसमें एक आदमी एक बच्चे को लेके जाता है, और वो बच्चा जो होता है वो व्हीलचेयर यूज़र होता है। जैसे ही वो दिव्यांगजन की वैगन में या बोगी में घुसता है, वो देखता है कुछ लोग वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और उनको तुरंत डांटना शुरू कर देता है, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, अगर आप दिव्यांगजन नहीं हो, अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप हटो 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 यहाँ से। तो मेरा क्वेश्चन उस वीडियो को देखते ही सबसे पहला था कि तुम्हें कैसे पता कि उसको डिसेबिलिटी नहीं है, राइट? हो सकता है किसी को कम सुनाई पड़ता हो, किसी को लेस विजन हो, या किसी को थैलेसीमिया हो,
ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो इंटरनल हैं, जो तुम्हें नहीं दिख रही हैं, तो तुम रिस्पेक्टफुल रहो। कहीं पे भी जाओ ये मत अज्यूम करो कि लोगों को पता होना चाहिए, नहीं। कई डिसेबिलिटीज नहीं दिखाई पड़ती हैं। अगर कैसी मेंटल इलनेसेस है, जैसे यहाँ पे आपने लिस्ट देख रहे हैं, कितनी सारी मेंटल इलनेसेस होती हैं जो दिखती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है। एक दिन इंसान सही दिखेगा, दूसरे दिन इंसान खराब दिखाई पड़ेगा। पर हर समय इंसान अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बात नहीं करना चाहता है, राइट? ये हम सबके साथ है, जिसको डिसेबिलिटी है। बट फिर भी हमको भी रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा सामने वालों के लिए। इसका एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरी ऑफिस की टीम में एक लड़की ने ज्वाइन किया, उसको हियरिंग डिसेबिलिटी थी। अब क्योंकि मुझे उस टाइम पे रिसेंटली डिसेबिलिटी डायग्नोस हुई थी, तो मेरे को थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उस लड़के से कैसे बात करूं, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज यूज कर रही थी अपना कम्युनिकेशन करने के लिए, और मुझे साइन लैंग्वेज ऑफ कोर्स आती नहीं थी। तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, और मुझे उसको बताना भी था, क्योंकि मुझे उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने थे कि ये काम करना है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को लगा करूं क्या करूं क्या। फिर मैंने फाइनली अपना फोन लिया, मैंने उसमें टाइप किया जो मैं उसको बोलना चाहती हूँ, और फिर मैंने उसको दिखाया, उसने समझा, ओके ओके फाइन आई डू इट। बट ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम अपनी डिसेबिलिटी को समझ लेते हैं, बट हम आसपास जो लोग होते हैं उनकी डिसेबिलिटीज को ना हम समझ पाते हैं, ना हम ये समझ पाते हैं कि उनसे इंटरेक्ट कैसे करना है, उनसे बात कैसे करनी है। तो ठीक है, सो और कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में? किसी और ने कोई ऐसी डिसेबिलिटी नोटिस करी अपने आसपास जो जो उनको समझ में भी नहीं आती है? एनीबडी एल्स? I have interacted with a person who has OCD. हम्म। Yes. क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़े थे राग में आपको? अगर ओसीडी होता है तो क्या होता है उसमें, कुछ बता सकते हो आप? Yeah, yeah. So it's like constant thinking about a certain thing. So being a psychology student, I understand mental disorders, right? So it was not that difficult for me to understand the symptoms. But as I already knew that this person is diagnosed with OCD, so it was quite helpful. So I could understand that, okay, if this is happening, this is the reason. या मैं अगर बता सकती हूँ इस बात को कि मैंने भी देखा है कि ओसीडी वाले लोगों के साथ इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है जो कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। सामने वाले को वो इंसान थोड़ा अजीब दिखता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज वो बार बार कर रहा है, रिपीटेडली वो काम कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई चीज फंसी हुई है। जैसे कि किसी फॉर एग्जाम्पल किसी कॉर्नर को वो छू रहा है, या फिर अपने हाथों को बार बार धो रहा है, या फिर बार बार उसी थॉट को बार बार सोच रहा है। क्योंकि उनके दिमाग एक जगह अटक जाता है, वो बोलता है कि अगर ये थॉट पूरी नहीं हुई तो उसका कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। तो उस वजह से वो फंक्शन ही नहीं कर पाते हैं। डिसेबिलिटी क्या होती है बेसिकली सिंपल टर्म्स में? एनीथिंग विच लिमिट्स योर फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग, राइट? अब काफी लोग जो होते हैं उनको कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज के बारे में नहीं पता होता है, राइट? कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज किसी को पता है क्या होती है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वो भी इनविजिबल डिसेबिलिटी में आती है। Hi, I can say something. Sure. I have MS, so the first invisible disability. Yeah. Yes. So I do face a lot of problem where I look fine. Since yesterday you're saying I look fine, but then moment something this like she's fine, nothing is wrong with her. But when I stand or when I try to function something, I do have a problem. And थोड़ा ऐसे it happens कि no, it cannot be that. Maybe she's pretending or trying to act. This is I have seen lot of MS patients. They face limitless problems. They cannot explain कि अरे नहीं नहीं हो रहा है मुझसे ये. So something I do. They cannot explain that कि नहीं नहीं this function cannot happen with me. Correct. So Correct. lot Thank of you so problems much. when Thank you so much, ma'am, for adding that. Sorry, Anushri, for adding that. ओके, सो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बेसिकली मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ऐसी डिसेबिलिटीज जो आपकी बेसिकली ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती हैं, चाहे वो मेमोरी रिलेटेड हो, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, या आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं बट आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की डिसेबिलिटीज जो कि आपको बेसिकली प्रॉपरली एज अ नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनिंग इंटेलेक्चुअल भी उसमें एस्पेक्ट आ जाता है। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे अनुश्री?
No, I'm not saying anything. You can continue. Okay, great. Okay, so moving on. अभी अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इट विल बी गुड इफ यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. वैसे ये स्लाइड्स ऑलरेडी प्रतीक के पास है तो आपको वो शेयर कर सकता है. हमारी सबकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ये सारी टाइप की डिसेबिलिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानें. तभी हम अपने एनवायरनमेंट को सबके लिए इंक्लूसिव बना सकते हैं. राइट नाउ आई हैव पुट सम सिनेरियोज ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे हम समझना चाहते हैं कि अपनी दुनिया को इंक्लूसिव कैसे बनाते हैं. तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलें. तो ये एक सिनेरियो, पहला सिनेरियो है जहाँ पे रवि एक व्हीलचेयर यूजर है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है अपने ऑफिस जाने के लिए. और हर रोज वो बस में एंटर करता है. फॉर्चुनेटली इस बस में जो भी सिटी है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बैंगलोर सिटी और मे बी अ मैसूर, जहाँ पे रैम्प्स अवेलेबल होते हैं बसेस में. तो ये रैम्प काम नहीं कर रहा है उस दिन और उसको लेट हो रहा है अपनी मीटिंग के लिए. अब अगर वो लेट हो जाता है अपनी मीटिंग के लिए तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का पार्ट मिस हो जाएगा, मीटिंग मिस हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके जॉब पे इम्पैक्ट आ सकता है. ऐसे में क्या कर सकता है रवि, क्या कर सकता है ड्राइवर, क्या कर सकता है, और हम इस सिस्टम को इंक्लूसिव और स्मूथ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं. द इनपुट्स आर इनवाइटेड. आपको जो ठीक लगता है बताइए. दिस इज नॉट अ स्पेस वेयर आई एम जजिंग एनीबडी, बट दिस इज ओनली अ स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट कुड बी द प्रोबेबल सॉल्यूशंस. मतलब जैसे रैंप होते हैं, एक्सेसिबल रैंप हर बस में होता है. तो मुंबई में कुछ 3-4 नए आए हैं जिसमें रैंप है, तो इसमें भी रैंप से होना चाहिए. तो हो सकता है ना. पंकज, पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो रैंप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बसेस में, इनबिल्ट रैंप जो होता है, वो रैंप उस दिन काम नहीं कर रहा है. तो रवि को बोला जाता है कि आप 40 मिनट बाद जो बस आ रही है उसका इंतजार करो. अब ऐसे में रवि की मीटिंग मिस हो जाएगी. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसे में क्या करा जा सकता है. So mostly, according to the situation, we can also contact the public authorities, be it police. We can contact them and they can come and help because it is his right. Public transportation, if it's not working, it is not his problem. He has to reach at this place. I totally agree. Absolutely. Great input. Okay. Anybody else? The portable ramp could be great. Like जो रहता है इंडिया में शायद से नहीं होता, बट एक पोर्टेबल रैंप आता है जो अनफोल्ड करके रैंप हो जाता है, बट इट्स डिपेंड ऑन हाइट. एक हाइट तक ये आ सकता है. सो इफ इट्स अवेलेबल देन इट्स ग्रेट. और कैब का भी इशू बहुत आता है कि कैब भी एक्सेसिबल नहीं होती. सो या दैट्स ऑप्शन. Great. Okay, so I think we've got good answers. Let me summarize this. तो पहली बात, रवि ताकि अपनी मीटिंग के लिए लेट ना हो, तो हो सकता है उसको टैक्सी बुलानी पड़े और हो सकता है उसको खुद जाना पड़े, क्योंकि इंडिया में ऐसा अभी तक कोई हेल्पलाइन नहीं है जहां पे अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेल्प नहीं कर रहा है तो वहां पे आप कॉल करके कोई हेल्पलाइन पे आप कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने लिए अरेंज कर सको. तो इंडिया में ऐसी कोई हेल्पलाइन अभी तक नहीं है, बट कायदे से होनी चाहिए. तो ये सिस्टमिक चेंज आना चाहिए. दूसरी बात, ऐसी बसेस में जहां पे रैंप खराब है या खराब होने के चांसेस हैं, तो एक टेम्पररी रैंप, मेकशिफ्ट रैंप टाइप का भी रखना चाहिए. जैसे कि प्रतीक ने बोला, तो एक रैंप रख सकते हैं, सीट के नीचे उसको डाल दिया, उसको फोल्ड किया और रवि को अंदर ले लिया. और भी कुछ हो सकता है, अगर ड्राइवर और कंडक्टर मिल के रवि की व्हीलचेयर को उठा के उस टाइम के लिए कम से कम अकोमोडेट कर सके, दैट इज ओनली अ टेम्पररी फिक्स. बट अगेन, जो भी व्हीलचेयर यूजर है उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसकी व्हीलचेयर को टच किया जाए या उसको टच किया जाए, तो फिर ऐसे में फिर डिपेंड्स कि रवि क्या करना चाहता है. तो उससे पूछ के कि आपको अच्छा लगता है अगर हम आपकी व्हीलचेयर को उठा सकते हैं, तभी वो स्टेप लेना चाहिए. राइट? तो दैट कुड बी अ सोल्यूशन. ओके, मूविंग ऑन टू सिनेरियो 2. तो यहाँ पे एक ग्रोसरी चेकआउट का सिनेरियो है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़की है, अनन्या. ठीक है, शी इज 100% ब्लाइंड और वो शॉपिंग कर रही है, ग्रोसरी शॉपिंग कर रही है. और वो जाती है, वो पूरी शॉपिंग करती है, फिर उसके बाद बिलिंग काउंटर पे जाती है और उसको वो कैशियर को बोलती है कि मुझे सारे आइटम ऑफ, मतलब जितने भी मैंने चीजें खरीदी है और उसका प्राइस बताओ मेरे को. क्योंकि जब उसने बिलिंग सुना कि टोटल अमाउंट क्या है, तो उसे लगा कि मुझे ओवर चार्ज किया जा रहा है, ज्यादा पैसा मुझसे मांगा जा रहा है.
तो ऐसे में पीछे खड़े लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं क्योंकि कैशियर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा है उस लिस्ट को। अनन्या को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो अपने दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके ऑल्सो चेक करे कि सही है कि नहीं सबके आइटम के सब प्राइसेस और नॉट। तो अब ऐसे में क्या करा जा सकता है? पहली बात, कैशियर अनन्या को कैसे हेल्प कर सकता है? और स्टोर ऐसे कौन से टाइप के चेंजेस ला सकता है जिससे कि ब्लाइंड कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम कभी ना आए? The second question, what changes store can make? I don't know if I'm right, but there is something called Braille writing, Braille script. So, वो अगर if they can make changes in their bill format, तो उस अगर वो writing होगा तो she can understand कि क्या लिखा है and what is the price. For the first question, cashier can also ask the other customers to make sure that Ananya is getting like she is getting the right bill. So he can just say to other customers to just tell her that इन्होंने कुछ changes नहीं किया, it is right. So that उनका कोई इंसान नहीं है, but सामने वाला अगर उसको बोल रहा है तो वो समझ जाएगी. So true. So true. That's a solution mindset already that you have out there. Okay? Anybody else? कोई और आइडिया जिससे कि हम अनन्या की डिपेंडेंस कैशियर पे या फिर लोगों पे हम कम कर सकते हैं? क्योंकि इंक्लूसिव हमारा एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट तब बनता है जब हम किसी भी इंसान को उतनी ही ऑटोनॉमी देते हैं जितने की बाकी सबको अवेलेबल है, राइट? सो बेसिकली आपने देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन पे कियोस्क लगे हुए रहते होंगे जहां पे आप कुछ नंबर्स दबा के अपने आप खुद अपना टिकट ले सकते हैं, राइट? तो इस टाइप के मॉल में भी मतलब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी कियोस्क लगाए जा सकते हैं जो कि वॉइस इनेबल्ड हो, कि आप बोल के अपने आइटम का आप प्राइस चेक कर सकते हैं कि इस आइटम का कितना प्राइस है, राइट? या फिर आपके आइटम के पीछे जो बार कोड है वो बार कोड आप स्कैन कीजिए। आपका जो बारकोड है वो थोड़ा-सा उठा हुआ होना चाहिए, थोड़ा एम्बॉस्ड होना चाहिए हर प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि जिन लोग को विजुअल डिसेबिलिटीज़ है वो उस चीज़ को महसूस कर सकें प्रोडक्ट्स के ऊपर, और फिर उसको वो दिखा के उस कियोस्क में उसका प्राइस पता लगा सकें, राइट? सो सिंपल सॉल्यूशन है, बट सोचना इसके बारे में थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई सर्विस या प्रोडक्ट बनाया जाता है इंडिया में, तो जिनको डिसेबिलिटीज है उनको कंसिडर भी नहीं किया जाता है, उनके इनपुट्स भी नहीं लिए जाते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजाइन करते समय। डिजाइन का मतलब ये नहीं होता है कि रैंप बना देना और एलिवेटर बना देना या हैंड रेल्स लगा देना, नहीं, दैट्स नॉट डिजाइन, दैट्स नॉट ओनली डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है हर प्रोडक्ट में, हर सर्विस में, हर टेक्नोलॉजी में, हर वेबसाइट में कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि आप डिग्निटी, रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज को। और दूसरी बात, लोगों के एटीट्यूड, जब कोई इंसान डिले हो रहा है, जैसे कि रागिनी ने भी बोला, जब कोई इंसान डिले हो रहा है तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर हम उस जगह पे होते तो कैसा हम कैसे मैनेज करते। तो थोड़ा सा इंसानियत रखना जरूरी लोगों को। और जनरली जिनको डिसेबिलिटीज होती हैं वो अपने राइट के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि क्या लोगों को समझ में नहीं आता है। बट एक्चुअली फैक्ट ये है कि लोगों को नहीं समझ में आता है। लोग आजकल बहुत इनसेंसिटिव होते चले आ रहे हैं। बस हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है अपने कामों के लिए। तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, राइट? ओके। द सेकेंड थिंग विच रागिनी ऑल्सो सजेस्टेड इज कि जो रिसीट मिलती है जिसपे सारे आइटमाइज्ड बिलिंग होती है, उस पे ब्रेल इनपुट किया जा सकता है, ब्रेल साइनेज हो सकती है उस पे, तो आसानी से वो खुद पढ़ सकती है अनन्या, राइट? या फिर जो रिसीट्स होती है उनको ऐसा बनाया जाए, इस तरीके से उनका आउटपुट दिया जाए कि जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर वो ईमेल पे ही आ जाए बिलिंग आपकी, राइट? तो ईमेल पे आ जाएगी तो आप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज करके आप उसको खुद पढ़ सकते हैं अनन्या। तो इस तरीके के सोल्यूशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। आपको एक मजे की बात बताती हूँ मैं, अभी रिसेंटली एक ग्रुप में मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप पे एक नया अपडेट आया है, जिसकी वजह से जिसको विजुअल डिसेबिलिटी है वो लोग व्हाट्सएप पे कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग फॉर देम। और जब भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रिलीज आता है, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं विजुअल डिसेबिलिटीज वाले लोगों को कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उस चीज को। ओके, सो मूविंग ऑन, पेरेंट टीचर मीटिंग। यहाँ पे सिचुएशन में एक बच्चा है, उसको ऑटिज्म है, 10 साल का बच्चा है, राइट? और वो पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाता है
उसकी टीचर बोलती है उसकी मदर को, बच्चा वहीं बैठा है, उसके सामने उसकी टीचर गुस्से में बोल रही है कि ये बच्चा डिसरप्टिव है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है, बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझा नहीं सकती हूँ मैं, और गुस्सा कर रही है, और उसको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ऐसे में जो बच्चा है आरव, वो सब कुछ सुन रहा है, बट वो क्योंकि ऑब्वियसली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है तो वो अपसेट है, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि जनरली जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लोगों के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, राइट? तो ऐसे में चैलेंज ये है कि एजुकेटर्स को कैसे अप्रोच करनी चाहिए ये सिचुएशन। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है क्योंकि हर किसी को ऑटिज्म नहीं समझ में आता है, बट एनी गेसेस कि हम इस एनवायरनमेंट को बच्चे के लिए कैसे रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव बना सकते हैं? सो कैसे होता है कि स्टार्टिंग में देर प्रॉब्लम्स आती है, बट एक टाइम के बाद टीचर ही गिव अप कर देती है, तो वो बंद होना चाहिए। एंड एक टाइम के बाद बच्चा भी समझ जाता है कि यहाँ पे हमें चुप बैठना है, यहाँ पे बोलना है। सो दैट्स द थिंग, टीचर को समझ के लेना और चाहिए। एक छोटी चीज का बड़ा ये करके बताना पेरेंट्स को, पेरेंट भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बच्चा तो डिप्रेशन में चला ही जाता है। सो दैट्स द थिंग्स दे शुड डू। करेक्ट। आई थिंक आई थिंक या श्योर, गो अहेड मनाली। आई थिंक गवर्नमेंट ने टीचर्स को ही पहले से ऐसा एक कोर्स देना चाहिए कि उन्हें हर तरह के बच्चे हैंडल करना इजी हो जाए। So nowadays, it's been so many years, I guess, if I'm not wrong. Government of India they have declared a rule, a law, जिसमें schools में counselors का होना काफी जरूरी है. This kind of conversation with parents should be done in presence of a school counselor, और उसी को हैंडल करना चाहिए एक्चुअली इन सारी चीज़ों को। सो स्कूल काउंसलर बेसिकली ही और शी लाइक दे मैनेज स्टूडेंट्स, और अगर किसी को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो फिर वो डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वोंट हैपन बिकॉज चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट करती है, एंड देयर मोरल, इवन देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, it just vanishes. So mostly that kind of conversation, everything, this kind of things has to happen in presence of that person, and they only should just communicate. और जो teacher है वो counselor को बताएगा कि ये problems है, so the counselor would know कि किस way में और कैसे तरीके से parent के साथ बात करनी है. I don't have to answer this scenario at all. Ragini has covered everything basically. So beautiful answer, Ragini, Manali, Pratik. I think all amazing answers. पहली बात तो हमारे schools में ऐसे educators होने चाहिए, special educators होने चाहिए, counselors होने चाहिए, जिनको proper training मिलनी चाहिए कि जिन बच्चों को अलग टाइप की डिसेबिलिटीज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म है, उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, उनको फीडबैक उनकी स्ट्रेंथ पे बेस करके देना है, ना कि उनको नेगेटिव फीडबैक देना है, क्योंकि ये बच्चे थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, राइट? अपने दुनिया को भी अलग तरीके से परसीव करते हैं। अब ऑटिज्म के बारे में एक तो बहुत लोग जानते नहीं है कि सिवियर ऑटिज्म ऐसे बच्चों को होता है जो बिल्कुल ही फंक्शन नहीं कर पाते हैं किसी भी सपोर्ट के, और हमारी मूवीज में और हमारे सीरियल्स में कुछ कुछ ऐसे ऑटिस्टिक कैरेक्टर्स दिखाते हैं जो बहुत ब्राइट है, जैसे कि रोहित दिखाया था, राइट? कोई मिल गया में, जो कि सुपर ब्रिलियंट हो जाता है आफ्टर जादू कम्स एंड डज हिज मैजिक ऑन हिम। तो there is a section of autistic children who are brilliant, but again social interactions are difficult for everybody. हम जैसे लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए भी, मतलब अगर हमें नहीं है ऑटिज्म तो भी हमारे लिए सोशल इंटरेक्शंस कैन बी डिफिकल्ट। अब सोचिए, जिसके दिमाग में ऑलरेडी इमोशंस को इंटरप्रेट करने का सिस्टम ही ना क्रिएटेड हो, तो ऑब्वियसली कितना डिफिकल्ट हो जाएगा उस टाइम पर। आई नो आई एम गोइंग अबव माय टाइम लिमिट, आई हैव जस्ट वन मोर स्लाइड एंड आई विल रैप अप आफ्टर दिस। ओके, तो ये क्वेश्चन था क्योंकि इस जो हमारे वेबिनार, उसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि डिसेबिलिटी है, डिजाइन से डिसेबिलिटी के लिए हम डिग्निटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ऑल थ्री थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से, सिर्फ कंफर्ट, एक्सेस और डिग्निटी ही नहीं, हम तीनों चीजों के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हमेशा रख सकते हैं। पहली बात, जब भी हम किसी
किसी भी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोडक्ट को देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि डज दिस डिजाइन अलाउ अ पर्सन टू यूज इट इंडिपेंडेंटली विदाउट नीडिंग टू आस्क फॉर हेल्प। जैसे अनन्या के केस में क्यों हर इंसान को जिसको हियरिंग डिसेबिलिटी है, विजुअल डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, क्यों ऐसे लोगों को हर समय हेल्प मांगने की जरूरत पड़ती है? क्यों हम ऐसी डिजाइन नहीं बनाते जिसके वो खुद आराम से अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं? पहली बात तो ये हमें क्वेश्चन करना चाहिए हर चीज के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डज दिस डिजाइन ट्रीट पीपल इक्वली और डज इट सिंगल देम आउट एज डिफरेंट? ऐसा कोई डिजाइन हो कि उनको बोले कि भाई तुम्हारे लिए तो सेपरेट एंट्रेंस है। मैंने देखा है कई जगह पे कई स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं, कई कॉन्सर्ट्स होते हैं या कई शोज होते हैं जहाँ पे व्हीलचेयर यूजर्स के लिए एक अलग से एंट्री, पीछे से एंट्री बनाते हैं जो कि और घूम फिर के पता नहीं कहाँ गंदी जगहों से होके जा रही होती हैं। तो क्यों हमें ऐसे फील क्यों करवाया जाता है कि हम डिफरेंट हैं? हमें इक्वल क्यों नहीं फील करवाया जाता है? तो डिजाइन शुड ट्रीट एवरीबडी इक्वली, right? Third question that everybody needs to ask is, does this design respect the person's time, comfort, and privacy the same way it does for everyone else? क्यों होता है कि जिसको डिसेबिलिटी होती है उसको ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, ज्यादा लंबी क्यूज में लगना पड़ता है? जैसे कि आप एरोप्लेन में जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट? जस्ट बिकॉज मेरे को व्हीलचेयर लेनी पड़ती है फ्लाइंग करते समय, तो मेरे को ज्यादा देर इंतजार करना पड़ता है, जल्दी पहुंचना पड़ता है एयरपोर्ट, और सबसे लास्ट में मेरे को उतारा जाता है जब सब उतर जाते हैं। तो क्यों क्यों ऐसा है कि मेरा कंफर्ट, मेरा टाइम क्यों नहीं रिस्पेक्ट किया जा रहा है? राइट? हो सकता है कि मुझे वॉशरूम जाना हो, मुझे जल्दी उतरना हो, तो क्यों मेरी नीड्स को सबसे लास्ट में रखा जाता है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम पूछना शुरू करेंगे तो इट विल हेल्प बिल्ड डिग्निटी फॉर एवरीवन इक्वली, राइट? सो दिस इज ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच गाइस। आई एम गोइंग टू स्टॉप माय प्रेजेंटेशन नाउ।